First part that I had to discuss with you was understand. The first is my aldol. I think we did, right? Yes, ma'am. It is going to be Cannizaro's reaction. Have we done Cannizaro's reaction? No, ma'am. Right on. Cannizaro's reaction is a reaction. The first point about Cannizaro's reaction is number one, it is a disproportionation reaction. It is a disproportionation reaction. Number one. Secondly, only those aldehydes, only those aldehydes which can, which does not have, which does not have alpha hydrogen, only those aldehydes which do not have alpha hydrogen can undergo Cannizaro's reaction. Can undergo Cannizaro's reaction. Third, it takes place, it takes place in the presence of, it takes place in the presence of concentrated NaOH. In Cannizaro's reaction, OH negative acts as a nucleophile. Alright. So this is the Yes, Cannizaro's reaction. Do you understand? Now, what exactly happens here is just see. So, for example, when I am talking about CHO, okay, and this is H, what do you get to see here? We have here HCHO. Alright. We have ma'am. here HCHO. Do you understand? Yes, So we see a C double bond O group right here. This group is called as a carbonyl group. This group is called as a carbonyl group. All right. And in this yes, carbonyl group, just have a look. We do not have any carbon on the other sides, right? There is no carbon at all. And when there is no carbon on the either side, we would say that the alpha H is zero. So such kind of aldehydes can give Cannizaro's reaction. Similarly, if I say C double bond O and H, yes or no? yes, C double bond ONH. And if I have this group here, CH2, double bond CH2. Now just have a look. Do you see this carbonyl group? The C double bond O group is called as a carbonyl group. Are you understanding? yes, And because we have the C double bond O group as my carbonyl group, all right? Just have a look on the either sides. Do you see this carbon right here? So this yes, ma'am. carbon here is nothing but my alpha, could have been my alpha carbon. But what is the condition to for something to be an alpha carbon? It must be, it must be an sp3 hybridized carbon. It must be an sp3 hybridized carbon. Are you understanding my point? Yes, ma'am. So when it is an sp3 hybridized carbon, so you have a look right here, it is CH2 double bond CH, right? Single bond C double bond ONH. So what do you think we have? We have C1 here, we have 1H here, 2, 3, and 4. So for this particular carbon, what do you think we have? We have alpha carbon, isn't it? This is not an alpha carbon thereby. Why? Because this carbon is making how many sigma bonds? Sigma, sigma, and sigma. I hope you're understanding. So only 3 sigma bonds makes the hybridization sp2.
And here, what is the hybridization? Must be there for the alpha carbon. It must be sp3. Yes or no? Yes. So what am I trying to tell you? That for an alpha carbon, the hybridization must be sp3. And here, this carbon, this black carbon, though it is very next to the carbonyl carbon, it is next to the carbonyl carbon. You understand? But this carbon, this black carbon is not sp3 hybridized, hence it is not an alpha carbon. So this aldehyde can also give Cannizaro's reaction. Yes or no? Yes. So this reaction can also give Cannizaro's reaction. Understood or not? Yes. Similarly, just have a look. So for example, if I say, benzene and I connect CHO, why am I trying to give you all of these examples? So that you understand that what all kind of aldehydes can undergo Cannizzaro and what all kind of aldehydes do not give Cannizaro's reaction. So we have this carbonyl group again. So when we are talking about this carbonyl group, all right. Yes. So we have the next carbon, this red carbon right here, just next to the carbonyl carbon. And we have one sigma bond, Hmm. one pi bond, one sigma bond, and one sigma bond. So how many sigma bonds? 3 sigma bonds. So for the red carbon, the hybridization is what? Tell me. The hybridization is sp2. sp2. But the alpha carbon must be sp. sp3 hybridized. Yes or no? Yes. And thereby, this aldehyde does not have an alpha carbon. And thereby, this aldehyde is a possible aldehyde which can give Cannizaro's reaction. Can give Cannizaro's reaction. Yes or no? Yes. Any doubts in this? मैम कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि Can give, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है. Those aldehydes which does not have अल्फा कार्बन, जिनके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, वो कैनिजारोस रिएक्शन देते हैं. आप देखो पिछले दोनों एग्जांपल्स में अल्फा कार्बन था ही नहीं. ये वाला कार्बन जो ब्लैक कार्बन था, ये भी sp2 था ना. हम्म. तो sp2 होने के कारण ये अल्फा नहीं रहा, क्योंकि अल्फा कार्बन तो sp3 होना चाहिए. हम्म. अगर ये अल्फा नहीं रहा तो ये कैनिजारो देगा. पहले वाले एग्जाम्पल में कार्बोनाइल ग्रुप है, पर पड़ोस में तो कार्बन वो ग्रुप है ही नहीं ना, कार्बन है ही नहीं. हम्म. तो अगर वो कार्बन है ही नहीं तो इससे क्या समझ आता है, बताओ. व्हाट डज इट मीन? कि भाई C डबल बॉन्ड O और H है, कार्बोनाइल ग्रुप है, बट अल्फा कार्बन तो नहीं है ना. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ मतलब sp3 होना चाहिए. sp3 होना चाहिए. अगर नहीं sp3, मेरी बात ही नहीं समझे भाई. अगर अल्फा कार्बन होता है कोई, तो वो sp3 होना चाहिए. हाँ. ठीक है. और अगर कोई sp3 अल्फा कार्बन मुझे मिल गया तो हम कह देंगे जी वो कैनिजारो नहीं देगा. मतलब कैनिजारो हर उस प्रकार का एल्डिहाइड रिएक्शन दे सकता है जो जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है. जो कैनिजारो की sp3 कंडीशन ना ये हो. है कि देयर शुड नॉट बी एनी अल्फा कार्बन. तो मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें तो CO के पड़ोस में तो कोई कार्बन ही नहीं है. हम्म. तो ये तो देगा ना. इट्स अ पोटेंशियल एल्डिहाइड व्हिच कैन गिव यू व्हाट? कैनिजारो दे देगा. हाँ. ये कह रही हूँ मैं ये बात समझ. हाँ. ठीक है. अब क्या होता है कैनिजारो में, देखो. मान लो मेरे पास CH3, सॉरी, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है CH2, राइट. मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है C
डबल बॉन्ड C। अब पहले मुझे बताओ कि इसके अंदर अल्फा कार्बन है या नहीं है, बताओ। ये अल्फा है। कार्बन है या नहीं है? C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में कार्बन तो दिख रहा है, हम्म, पर क्या वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा? इज इट फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स? नो। नो। सो दिस इज नॉट एन अल्फा कार्बन। तो मतलब ये आपको एल्डिहाइड कैनिजारो दे देगा, सही बात है, ये हाँ। एल्डिहाइड आपको कैनिजारो दे देगा, इजंट इट? yes, बोलो। और अगर ये आपको कैनिजारो दे देगा तो कैसे होता है कैनिजारो? इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम उस टाइप के एल्डिहाइड के और जब हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं उस टाइप के एल्डिहाइड के तो क्या होता है मुझे बताओ कि एक CHO का क्या सीन है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, बोलो। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सही है? हम्म, तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि मैम अगर CHO एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होके क्या बनाएगा? CHO रिड्यूस होके क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। क्योंकि आप देखो ना, एक O की जगह, ये O की जगह OH आ गया, तो यहाँ ऑक्सीजन तो था ही पर हाइड्रोजन बढ़ गए ना इसी एरिया में, हम्म, एक ही हाइड्रोजन था। और आप देखो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन इस एरिया में बढ़ गए, इजंट इट? हाँ, और यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, ब्लू एरिया में ऑक्सीजन बढ़ गया, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाँ है ना? हाँ। सो व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन, यू टेल मी? रिडक्शन और ऑक्सीजन का इंक्रीज ऑक्सीडेशन। हो गया, दैट इज COH, और यहाँ आ गया CH2OH। नहीं आई बात समझ? हाँ। तो इसे बोलते हैं कि भाई अगर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन। हम्म, और अगर इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसे बोला जाता है रिडक्शन। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होना और एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी होना, तो इसे बोला जाएगा व्हाट? इसे बोला जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो कैनिजारोज रिएक्शन में क्या होता है? कैनिजारोज रिएक्शन में कंटिन्यूअस डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? yes, ठीक है। तो एक ही एल्डिहाइड आपका क्या बन जाता है? एक ही एल्डिहाइड आपका अल्कोहल भी बन जाता है, और वही एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? yes, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, ठीक है, तो ये सिस्टम है। अब जैसे बस याद क्या रखना है, रीएजेंट याद रखना है, C फॉर कैनिजारो, C फॉर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है। हम्म, सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला HCHO, तो ये कौन है? ये है मीथेनॉल, ये है मीथेनॉल। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेनॉल क्या देगा? एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो एक मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होके क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक मॉलिक्यूल का बनाएगा HCOO, और एक मॉलिक्यूल का CHO रिड्यूस होके क्या बनाएगा? अल्कोहल, HCH2OH। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? yes, तो ये सिस्टम है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, so this is going to be what? This is going to be methanoic acid, and this is going to be methanol. तो इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ना CH3OH। नहीं ये बात समझ? हाँ, पढ़ना समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि मान लीजिए बेंजीन है,
और बेंजीन का, ये बेंजीन का CHO लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। और ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका क्या है, जिसका कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो इससे क्या समझ आ रहा है कि मैम आप इस पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स आप लोगे, तो एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है मैम, CHO कन्वर्ट होता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सही बात है। हम्म, और बेंजीन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, COO Na में, है ना, मतलब Na एज इसका एक रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किस में होता है मुझे बताओ, CH2OH में। नहीं OH, ये बात समझ, हाँ, एक बन गया बेंजाइल अल्कोहल, तो ये नेम्ड रिएक्शन के तौर पे आता है, और ये बन गया बेंजोइक एसिड। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, ज्यादातर समय पे यही होता है कि जो हमारा COOH है ना, ये हम्म, बेंजीन है जैसे COOH है ना, तो बेंजोइक एसिड का जो ये COOH है, इससे क्या समझ आ रहा है मुझे बताओ, बोलो। इससे मुझे समझ ये आ रहा है कि ये हुआ COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? क्योंकि आप देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना और NaOH बेस है, तो हर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कैसे हो सकता है, CH3COOH प्लस NaOH, Na प्लस और OH नेगेटिव, और ये टूट जाएगा आपका, तो नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस वाटर। समझ आई? तो कभी कभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा नहीं जाता, तो जैसे ये COOH बना इधर, देख रहे हो इधर, हाँ, तो ये H हटकर यहाँ पर Na आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या, COONA। समझ आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? हम्म, सो दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये हमें समझ आना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नहीं आई बात समझ? हाँ, ठीक है, ये फंडा है। अब आगे चलो, ऐसे आप किसी के साथ भी लिख लो, यही हमको याद रखना है। अब इसमें ये जो मैंने लिखा ये सिंपल डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, ये सिंपल डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। पर मान लीजिए मैं ऐसा कर देती हूँ कि मैंने एक ले लिया HCHO और एक ले लिया बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, एक ले लिया HCHO और एक ले लिया बेंजाल्डिहाइड, क्या होगा मैम? डाला तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ही, इजंट इट? डाला तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ही, सही बात है कि नहीं? हम्म, तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ही डाल रहे हो तो होगा क्या, जो छोटे वाला एल्डिहाइड है, छोटे वाला एज जिसके साइड में यहाँ ग्रुप कैसा लग रहा है, जिसके साइड में यहाँ ग्रुप यहाँ छोटा ग्रुप है, CHO ग्रुप तो दोनों में ही सेम है ना भाई, हम्म, CHO ग्रुप तो दोनों में ही सेम है, लेकिन इसके साइड में यहाँ ग्रुप बड़ा है और यहाँ ग्रुप छोटा है, समझ आई? हाँ, तो छोटे वाले का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटे वाले का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और बड़े वाले का बनेगा अल्कोहल। मतलब बड़े वाले का हो जाएगा रिडक्शन और छोटे वाले का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा HCOOH और बड़े वाले का बन जाएगा CH2OH। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, नहीं ये बात समझ, हाँ, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी सॉर्ट ऑफ सॉल्व द क्वेश्चंस। आई बात समझ तो बोलो, ठीक है, फंडा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन। बस आपको इसमें यही याद करना है कि भाई एल्डिहाइड होना चाहिए, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, मैम तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक और ये अल्कोहल बनेगा। हमेशा। और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH हटा के Na लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता हाँ, है ना?
क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, बात समझ आ गई तो बताओ। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बात समझ। हाँ। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट, राइट। तो आज इतना ही कर लो। कल पॉजिटिवली मॉर्निंग में आई विल कनेक्ट विद यू अराउंड व्हाट टाइम? आई विल कनेक्ट विद यू अराउंड 11 to 1, 2 आवर्स के लिए कल कनेक्ट करूंगी। ठीक है, और कल मैं जितना भी बचा होगा आपका सारा खत्म कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो ये लास्ट आपकी क्लास के कुछ मिनट्स रह गए थे, तो आई हैव कवर्ड अप दैट टुडे। 20 मिनट्स की क्लास हुई आज।